Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड हाँ, मॉर्निंग मैम। ask your classmates to join. ठीक है, 2 मिनट में हम शुरू करते हैं. Okay, let's start. So, let me just share my screen, right? Now I have one doubt. Like एक क्लास में रिलेटिव लेआउट एंड कंस्ट्रेंट लेआउट दोनों हो गया है, दूसरे क्लास में बाकी है. सो आई एम नॉट श्योर कौन से वाले क्लास में हो गया है, कौन से क्लास में बाकी है. कैन यू लाइक एनलाइट मी? CSC मैम 1. भाई CSC2 में लास्ट टाइम कंस्ट्रेंट और रिलेटिव लेआउट हो गया था। ओके, तो CSC 1 में बाकी है, राइट? ठीक है. यस मैम. हाँ, तो CSC 1 में आज की लैब में हम कर देंगे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेबल लेआउट. ओके, ठीक है, चलो. टेबल लेआउट का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज गुड. You can like check that. Okay, I have made one PDF from there only. Just a minute.
were discussing table layout, right? So in Android, table layout is somewhat similar to table layout of HTML. Okay, but यहाँ पे कुछ attributes and Can you parameters. start the recording? बट यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स एंड पैरामीटर्स हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स एंड पैरामीटर्स से थोड़े डिफरेंट है, बट ओके, बट इट डज द सेम टास्क. सो लेट्स सी वन बाय वन कि है क्या, डिटेल में देख लेते हैं. ठीक है. सो बेसिकली टेबल लेआउट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो एंड यू कैन लाइक. Hello, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, can you start the recording? आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट. Sorry, ma'am. Okay. So yes, in table layout, like there will be rows and columns, right? So जैसे आप HTML में करते थे, the same way there will be one row और उसके अंदर आपको कितनी number of columns define करनी है आप कर सकते हो. ठीक है. Then कौन सी column को like span बढ़ाना है या वैसे you can do that, right? But यहाँ पे parameters different रहेंगे. ठीक है. So let's see how to do it and which are the parameters related to the table layout and all that stuff, right? Let's start. So a layout that arranges its children into rows and columns is called a table layout, right? So इसके अंदर जो parent tag रहेगा, ठीक है, मतलब रो के लिए जिसके अंदर आप उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स रख सकते हो. ठीक है. और यू कैन से कॉलम्स रख सकते हो, एक एक इंडिविजुअल सेल्स. दैट इज टेबल रो. ओके. So there will be a parent tag table row inside table layout और जिसके अंदर आप दूसरे components रख पाओगे. ठीक है. So a table layout containers do not display border lines for the rows columns. Okay. And each row has 0 or more cells. आप कोई भी मतलब उसके अंदर आपको एक कंपोनेंट भी नहीं रखना है, वैसे भी रख सकते हो एंड यू कैन ऐड एज मेनी कंपोनेंट्स एज यू वांट, राइट? The table has as many columns as the rows with the most cells, and a table can leave cells empty. Cells can span columns as they can in HTML, right? We have discussed it earlier. So let's see the next one. The width of a column is defined by the row with the widest cell in the column, and however, a table layout can specify certain columns as shrinkable or stretchable. Okay. So if you want to like shrink as in आपको कैसे कोई पर्टिकुलर सेल है उसकी साइज छोटी करनी है, ठीक है, उसको shrink करनी है. So for that there is a method called set column shrinkable. So from Java file if you want to do that you can use this method. Okay. And कैसे आपको Java file से नहीं, just a minute. हाँ, अगर आपको जावा फाइल से नहीं बट एक्सएमएल से करना है देन देयर इज लाइक एट्रीब्यूट कॉल्ड कॉलम स्ट्रिंग. ओके. द सेम वे फॉर स्ट्रेच. अगर आपको उसे स्ट्रेच करवानी है यू कैन डू दैट. आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड इट हैपनिंग. ओके. द नेक्स्ट वन इज if marked as shrinkable the column width can be shrunk to fit the table into its parent object, right? ये जो हम shrink करते हैं या stretch करते हैं that will be based on the size of the parent. ठीक है. आप parent की size के according ही उसे stretch and shrink कर सकते हो, उसकी size से बड़ा नहीं कर सकते, right? And the total width of the table is defined by its parent container, right? Suppose यहाँ पे एक component आपने UI control आपने बड़ा रखा है, दूसरा छोटा रखा है, तो basically it will fit to the parent's width height like that. Okay. It is important to remember that a column can be both shrinkable and stretchable. In such a situation, column will change its size to always use the available space, but never more. So finally, you can hide a column by calling set column collapsed. Okay.
आपको कोई कॉलम हाइड करनी है तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है सेट कॉलम, सॉरी इसके लिए एक मेथड है सेट कॉलम कोलैप्स्ड, ओके, एंड द एट्रीब्यूट इज कॉलम कोलैप्स्ड. अब there is one more thing which you need to understand about the table layout, so that's this one. Okay, let's see. The children of a table layout cannot specify the layout with attribute. ठीक है, टेबल लेआउट के जो चिल्ड्रन रहेंगे उसके अंदर अंदर हम लेआउट एट्रीब्यूट, सॉरी लेआउट विथ एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो लेआउट विथ एट्रीब्यूट कहाँ पे डिफाइन होगा? दैट विल बी डिफाइंड इन द पैरेंट. ओके, जो पैरेंट की होगी वही उसकी लेआउट विथ रहेगी. सो विथ इज ऑलवेज मैच पैरेंट. ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक ही, फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेबल लेआउट, ओके, assume that this box is table layout. तो आपने फर्स्ट टेबल रो लिया, ठीक है, देयर विल बी वन पैरेंट एट टैग व्हिच विल बी टेबल रो. तो आपने एक टेबल रो लिया और उसके अंदर सिर्फ एक ही यूआई कंट्रोल ऐड किया. फॉर एग्जांपल आई हैव एडेड वन बटन, सो दैट विल स्ट्रेच लाइक दिस. सिर्फ एक ही कंपोनेंट रखा है तो, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर स्ट्रेच आपको नहीं करना है तो उससे सिंपल एक बीच में रहेगा वैसे. ठीक है, बेसिकली एक ही रहेगा. दैट्स व्हाट आई मेंट. एंड हाउएवर द लेआउट, बेसिकली सेल की जो साइज रहेगी ना वो एक ही रहेगी उसके अंदर. हाँ, एक और चीज, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस. अगर कैसे आपने कोई एक टेबल रो के अंदर एक ही कंपोनेंट रखा है, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस कि ये पूरा सेल टेबल रो है. फॉर एग्जांपल इनर बॉक्स, राइट. अगर आपने बटन रखा सो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आप चाहो तो उसे कैसे लार्ज कर सकते हो. ठीक है, इसकी जो विड्थ है उसे मैच पैरेंट करवा सकते हो, और एल्स इट विल बी लाइक दिस. बट ये जो आउटर बॉक्स है ब्लू वाला, सभी थोड़ा रेड कर देते तो पता चले, दिस रेड वन, ओके, दैट इज योर टेबल रो. उसके अंदर आप जितने चाहो उतने यूआई कंट्रोल्स रख सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो इसे सेंटर में रखो या फिर विथ बढ़ाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, बट द विथ ऑफ दिस यूज होता है. ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. एंड अगर आप लेआउट हाइट की बात करो, राइट, तो लेआउट हाइट एट्रीब्यूट कैन बी डिफाइंड बाय अ चाइल्ड. डिफॉल्ट व्यू इज व्यू ग्रुप डॉट लेआउट पैरम्स डॉट wrap कंटेंट. ओके, बट अगर आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो. एंड नेक्स्ट वन इज सेल्स मस्ट बी एडेड टू अ रो इन इंक्रीजिंग कॉलम ऑर्डर, राइट. तो पर्टिकुलर एक टेबल रो के अंदर आप मल्टीपल सेल्स ऐड कर सकते हो एंड उसका भी आप नंबरिंग दे सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेआउट कॉलम एट्रीब्यूट. तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग दे सकते हो एंड बाय डिफॉल्ट द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, जैसे एरे में रहते हैं वैसे column numbers are zero based. If you don't specify a column number for a child cell, it will auto increment to the next available column. So if you skip a column number, it will be considered as empty cell in that row. Okay, and there are few like points related to that. Almost यहाँ पे सब cover हो ही गया है, but देख लेते एक बार. So for building a row in a table, we'll use table row element, right? I have already explained you that. And table row objects are the child view of the table layout. Then each row of the table has 0 or more cells and each cell can hold only one view object like image view, text view or any other view, right. Then total width of a table is defined by its parent container and column can be both stretchable and shrinkable, right. And if shrinkable, then the width of the column can be shrunk to fit the table into its parent, right. And if stretchable, then it can expand in width to fit any extra space available. So आप मेन पैरामीटर्स देखने जाओ ना तो इसमें 3 से 4 ही है. फर्स्ट वन इज आईडी. ठीक है, कोई भी यूआई कंट्रोल रहता है उसकी आईडी रहती है, सो इट आल्सो हैज आईडी. देन द सेकंड वन इज लेआउट, sorry not layout, stretch columns. Okay, I have added few example over here. The first attribute is stretch columns. Stretch columns में क्या कर सकते हो?
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक फर्स्ट सिनारियो, ओके। यहाँ पे दो टेक्स्ट ऐड किए, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, ठीक है। अगर आप स्ट्रेच कॉलम्स एट्रीब्यूट में 0 लिखो, ठीक है। और एक और चीज, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, सॉरी यूआई कंट्रोल है, उसका नंबर होगा 0 एंड जो सेकंड वन है उसका नंबर होगा 1, राइट। वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ कि ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है, राइट। तो फर्स्ट है उसका नंबर 0 दिया है, सेकंड है उसका नंबर 1 दिया है। सो इफ यू विल पास स्ट्रेच कॉलम्स इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट यूआई कंट्रोल है, ठीक है, उसको स्ट्रेच करेंगे हम, ठीक है। So here you can see first UI control is stretched, but if you are passing 1 as a value, right, in stretch columns, then your second UI control will be stretched. और अगर आपने स्टार दिया है then equiv with होगा दोनों, ठीक है। Then this is the example of shrink. If you want to shrink it, you can apply the attribute shrink columns, okay. And the last one is collapse columns. So अगर आपको कोई कॉलम को इनविजिबल कर देना है, ठीक है, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस एट्रीब्यूट कोलैप्स कॉलम्स। सो यहाँ पे एक्चुअली में दो कॉलम्स है, कॉलम 1 कॉलम 2, राइट। बट हमने कॉलम मतलब 1 बेसिकली हमारा जो फर्स्ट है दैट इज 0 इंडेक्स, राइट। तो उसको हमने कोलैप्स कॉलम अप्लाई किया उसके ऊपर, ठीक है। कॉलम कोलैप्स कॉलम इक्वल टू 0, सो आवर फर्स्ट कॉलम इज इनविजिबल ओवर हियर, राइट। आप सिर्फ सेकेंड कॉलम देख सकते हो। So this way table layout will work, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो आपको ज़्यादा आइडिया है। उसके रिलेटेड थियरी है वो तो हमने देख ली, राइट। तो एग्जांपल में हम कुछ ऐसा करेंगे, विल क्रिएट वन फॉर्म, ओके। अभी तक आप फॉर्म क्रिएट कर ही रहे हो, एक बार और क्रिएट करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ टेबल लेआउट, ओके। सो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे टाइटल देंगे फॉर्म करके, ठीक है। उसके बाद विल टेक वन टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर हम लिखेंगे यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे। और उसके पीछे हमें एक चाहिए एडिट टेक्स्ट, ठीक है। सेम थिंग फॉर पासवर्ड, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू फॉर पासवर्ड एंड एट लास्ट देयर विल बी वन लॉग इन बटन। और चीज, सपोज यहाँ पे 3 की स्पेस हो, ठीक है, मतलब 3 सेल्स की स्पेस हो, ऐसे 1 2 3, तो फॉर वन सेल देयर विल बी यूजर नेम एंड पासवर्ड टेक्स्ट व्यू, एंड फॉर अनदर टू मतलब फॉर अनदर वन एज इन फॉर एडिट टेक्स्ट, वो ऐसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोई बोल सकता है? इसे हमें स्प्रेड करना, मतलब ऐसे बढ़ाना है, तो we are going to use the concept of stretch column, okay. So let's start. And you can find the same documentation over here, okay. ये जो पीछे की इमेजेस है वो मैंने एंड्रॉइड नहीं, एंड्रॉइड है नहीं, अभी एंड्रॉइड से लिया है, तो यू कैन फॉलो दैट टू इफ यू विश। So I have created one new project for table layout, okay. Let's go to main activity. Deleting this text view. अब कंस्ट्रेंट लेआउट है, मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट से टेबल लेआउट अप्लाई करना है, सो आई एम राइट क्लिकिंग ऑन दिस कन्वर्ट व्यू। यहाँ पे टेबल लेआउट नहीं लिखा हुआ है, सो आई कैन सर्च फॉर दैट, राइट। टेबल लेआउट, हियर इज द ऑप्शन, राइट, एंड अप्लाई। So you can see the relative layout is converted into table layout, right? Okay. So this is our table layout. अब
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक वन टेबल रो, राइट? सो गो टू दिस पैलेट एंड गो टू लेआउट। लेआउट में दोनों है, टेबल लेआउट भी है, टेबल रो भी है, ठीक है? सो यू कैन अप्लाई दैट। आई हैव एडेड वन टेबल रो, राइट? अब टेबल रो में एट्रीब्यूट आप देख ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट इट्स मैच पेरेंट, राइट? ओके, अब मुझे टेबल फर्स्ट टेबल रो है, ठीक है, उसके अंदर एक टेक्स्ट भी ऐड करना है टू ऐड द लाइक फॉर्म टाइटल, राइट? तो इसे हम क्लोज टैग नहीं रखते, ठीक है? अब इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं एक टेक्स्ट व्यू। वी कैन ऐड इट लाइक दिस डायरेक्टली, राइट? टेक्स्ट व्यू आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म, राइट? देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, राइट? थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं तो पता चले, टेक्स्ट कलर सब चेंज कर देते हैं, राइट? ओके, दैट विल बी समवॉट विजिबल। टेक्स्ट कलर अप्लाई तो कर दिया ना, साइज अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट साइज हम कर देते हैं 20 विल बी इनफ आई गेस, राइट? या 25 कर देते हैं, so that will be more visible, right? Okay, okay, that is clearly visible now. ठीक है, अब इसे सेंटर में लाना है तो उसके लिए ग्रेविटी अप्लाई कर देते हैं एंड लेआउट स्पान अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो लेआउट ग्रेविटी में, ग्रेविटी विल बी सेंटर हॉरिजॉन्टल, राइट? हॉरिजॉन्टल में हमें सेंटर में चाहिए, एंड ये एक अप्लाई करोगे सिर्फ तो नहीं होगा, यू नीड टू अप्लाई द लेआउट स्पान ऑल्सो। ओके, लेआउट स्पान हम अप्लाई कर देते हैं 2। तो इसी के साथ हमें एक और चीज करनी होगी, हाँ, यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं मेंशन किया है, सो वी हैव टू मेंशन ओरिएंटेशन एज इन व्हाट इट इज। हाँ बोलो मैम, ये टेबल लेआउट कैसे डिजाइन में प्लेस करते हैं? व्हाट मैम, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है क्या ये टेबल लेआउट को कंपोनेंट ट्री में? यहाँ पे कंपोनेंट, हाँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आप कोड से भी लिख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्टली आप कंपोनेंट ट्री में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और मैम, जो पहले से कंस्ट्रेंट लेआउट है वो डिलीट नहीं होगा? आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, मतलब आपका जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वहां पे राइट क्लिक ऑन दैट एंड कन्वर्ट व्यू अप्लाई करो, ठीक है? और यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट दिया है यहाँ पे टेबल व्यू लिख के, सॉरी टेबल लेआउट लिख के उसे अप्लाई कर सकते हो एंड देन अप्लाई। ओके, दैट विल बी कन्वर्टेड। Okay, so we were discussing this one. Right? हाँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल सिर्फ से नहीं होगा, we have to do some other things also, right? So हमने लेआउट स्पान अप्लाई करके देखा, राइट? अप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 अप्लाई कर रहे हो तो दैट विल बी स्पान्ड इन 2, अगर 3 अप्लाई करोगे तो 3 लाइक दैट, राइट? लेआउट स्पान 2 मिनट के लिए रहने देते हैं। उससे पहले वी वर अप्लाइंग द ओरिएंटेशन, राइट? In table layout we have applied orientation, and one more thing, whenever you apply the stretch columns option, right, so that will be written inside your table layout. Okay, so आप अप्लाई कर सकते हो। want to apply, okay, अभी जरूर नहीं है तो अभी हम नहीं कर रहे। and one more thing, you can apply padding also, ठीक है? I don't require this right now, so I'm removing it. You can apply padding also, so let's apply padding over here,
तो थोड़ा सा वो स्पेस रहे, ठीक है। सिस्टम में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो गॉट द कॉन्सेप्ट। जब आप दोनों अप्लाई करोगे, लेआउट स्पान एंड स्ट्रेच कॉलम्स, एट दैट टाइम योर like attribute, sorry not attribute, text view will be in center. ओके, तो आपने यहाँ पे 2 का स्पान रखा है, मतलब ठीक है, एंड आपने स्ट्रेच कर दिया कॉलम को, तो दैट विल वर्क लाइक दैट। सो ये हमने एक रो का काम कंप्लीट किया। नाउ वी वांट टू ऐड अनदर रो फॉर यूजर नेम, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गो टू द लेआउट्स एंड ऐड न्यू रो, टेबल रो, नॉट इनसाइड दिस, जस्ट यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कंपोनेंट ट्री में ऐड करोगे तो उसके अगर कैसे चाइल्ड में चला जाता है, एज एन टेबल रो के चाइल्ड में, सो यू कैन डायरेक्टली ऐड दैट इन अ XML और यू कैन से दिस पर्टिकुलर, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टेबल रो आ गया है, तो उसके अंदर हमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना होगा, राइट। सो आई एम एडिंग द टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं पहले तो, राइट। एंड इसकी जो कलर है ये सब है वो अप्लाई कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी कम कर देते हैं, 15 रख देते हैं, दैट इज 2। ओके, 17 विल डू, राइट। अब एक और चीज, यहाँ पे आपको कैसे दोनों साथ में दिख रहा है, यू वांट टू अप्लाई पैडिंग, यू कैन डू दैट, राइट, इन दिस टेबल रो, so you can apply padding. ओके, फर्स्ट टेक्स्ट व्यू हो गया, राइट। एंड हाँ, एक और चीज, ये बहुत लेफ्ट में लग रहा है तो उसके लिए मार्जिन भी अप्लाई कर ही देते हैं। आई गेस दिस इज अनदर वन, राइट, यस, हियर इट इज, कर देते हैं, थोड़ा आ गया। ओके, नाउ विल ऐड टेक्स्ट व्यू, सॉरी एडिट टेक्स्ट ओवर हियर, राइट। उसके बाजू में गो टू टेक्स्ट एंड अप्लाई plain text or edit text over here, राइट। आ गया दूसरा, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, बेसिकली टेक्स्ट ही चेंज कर देते हैं, उसके जगह पे हम अप्लाई कर देते हैं हिंट, राइट, नेम। अब एक चीज आपने नोटिस की हो तो दोनों साथ में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी पैडिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन अप्लाई कर दो या फिर मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बीच में स्पेस आ गया, ग्रेट। और वन मोर थिंग, यहाँ पे दोनों में हमने कॉलम डिफाइन नहीं किए, ठीक है। एज इन यू कैन से दैट yes, हाँ, so basically you can say that this is first column, this is second column, right। दो कॉलम है, we have not defined that yet, so by default this is 0, this is 1, right। but if you want to define it, आप क्या कर सकते हो, लेआउट कॉलम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यूजर नेम वाले टेक्स्ट व्यू में लेआउट कॉलम इक्वल टू 0 कर देंगे एंड एडिट टेक्स्ट वाले टेक्स्ट व्यू में लेआउट कॉलम इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है।
सो यूजर नेम ओके यहाँ पे राइट, और ये जो है वहां पे अप्लाई कर देते हैं लेआउट कॉलम इक्वल टू 1. Right, the same way we'll add another table row for password, right? So go to layouts, add table row, right? So here is our table row. यहाँ पे भी हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, राइट राइट. अंदर भी एक टेक्स्ट व्यू एंड एडिट टेक्स्ट रख देते हैं. सो लेट्स गो टू दैट. टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया, राइट. हियर इट इज. नाम चेंज कर देते हैं, पासवर्ड. इसको भी हम सेम अप्लाई करते हैं एज इन मार्जिन. यहाँ पे टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, मार्जिन. ठीक है, ये 3 अप्लाई कर देते हैं. टेक्स्ट स्टाइल भी आ जाएगा एंड कॉलम भी आ ही जाएगा, राइट. दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस पर्टिकुलर रो, सो we can copy this much and apply that over there, right. I hope you understood that. This one color apply किया, size samely, right. Margin apply किया, layout column and text column. So these two are somewhat similar. Now let's apply the edit text. So plain text apply किया यहाँ पे, ठीक है. So here it is. फिर से यहाँ पे hint apply कर देते हैं, right. So hint will be enter. You can add all these things from string dot XML file, right. अभी मैं हार्ड कोडेड टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, बट यू कैन ऑलवेज यूज द string dot XML. ओके, यहाँ पे भी कैसे पैडिंग नहीं है तो मार्जिन, यू कैन से मार्जिन नहीं है, ठीक है. पैडिंग क्या करेगा, यहाँ पे बीच में आपका जो कंपोनेंट है यूआई कंट्रोल, उसके बीच में स्पेस ऐड कर गया, ठीक है. बट वी हैव टू ऐड स्पेस आउटर साइड, सो विल अप्लाई मार्जिन. मार्जिन लेफ्ट 10, राइट. सो ये एक लाइन में आ गया. नाउ द नेक्स्ट रो फॉर लॉगिन बटन. So we'll take one more table row, we'll add it over here, right. और उसके अंदर एक बटन ले लेते हैं. आप यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो बटन, ठीक है. पर क्या होगा, अभी उसकी विड्थ नहीं है तो प्रॉपर्ली सेट नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन एड इट ओवर हियर, ठीक है. अब बटन का सबसे पहले टेक्स्ट चेंज कर देते हैं. तो as this is the login button, let's write login over there, right. And we want to make it in, want to like place it in center. तो जैसे हमने फॉर्म में किया था सेम चीज करेंगे. we'll apply layout span. ओके, तो layout span अप्लाई कर देते हैं 2, ठीक है. पर एज यू कैन सी लेआउट स्पैन 2 अप्लाई करने पे वो स्ट्रेच हो जाता है. तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेविटी, जस्ट अ मिनट. हमने और क्या ऐड किया था, मतलब उसके अलावा क्या था, वी हैव एडेड लेआउट स्पैन एंड ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल. ओके, पर यहाँ पे रैप कंटेंट की जगह पे वो मैच पेरेंट की वजह से होता है. यू नीड टू रिमूव दिस, राइट.
जस्ट अ मिनट। मैम बटन शायद वेब कंटेंट नहीं मैच पेरेंट करे तो हो जाएगा शायद। लेआउट विथ की बात करें, मैच पेरेंट नहीं, ट्राई करके देखो कुछ जुगाड़ हो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर रैप कंटेंट में नहीं होगा तो मैच पेरेंट में भी नहीं होगा। इट्स लाइक दैट। फिर जुगाड़ भी लगाना है तो आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या वही फिर बोलने वाला था। हाँ हाँ, लास्ट में कुछ नहीं हो रहा तो यू कैन अप्लाई मार्जिन, ठीक है। मैम ग्रेविटी यहाँ पे तो इक्वल टू एक और चीज, यहाँ पे स्ट्रेच कॉलम्स 1 है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ बोलो, ग्रेविटी वी हैव अप्लाइड ग्रेविटी सेंटर एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल, दोनों में नहीं हुआ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हमने फॉर्म में क्या अप्लाई किया था, लेट्स सी, तो पता चले। वी हैव जस्ट एडेड पैडिंग, रैप कंटेंट ही है, एंड ग्रेविटी अप्लाई की थी। मैम तो डायरेक्ट टेबल रो में ग्रेविटी सेट कर देना शायद। यहाँ पे हाँ मैम शायद if in button it's not working, so मैम we can try gravity in table रो also. let's try. Okay, that is a good suggestion. Okay, so whenever you find such kind of issues, you can apply the gravity tag direct, gravity attribute directly to the table row. Okay, that will work. So thank you whoever has suggested that. Okay, so this way you can set your form. Okay, अब एक चीज है, we have learned about टेबल लेआउट, ओके, और उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है हमने सीखे, तो मेन तो यही एट्रीब्यूट्स है। तो एक हमने देखा स्ट्रेच कॉलम्स, राइट, देन देयर वाज स्ट्रिंग कॉलम, देन लेआउट स्पान, एंड अदर देन दैट मतलब देयर इज लेआउट कॉलम, राइट। तो ये एट्रीब्यूट यूज करने में तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, बट एक चीज है जो सबसे ज्यादा लाइक आप यहाँ पे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो फेस करो, विच वाज लाइक प्लेसिंग योर एट्रीब्यूट, ओके। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू लर्न। तो जो हवाला मतलब एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम लिया था, ठीक है, फॉर्म वाला, जहाँ पे जेंडर पूछा था, फिर चेक बॉक्सेस दिए थे, सो लाइक क्रिएट द सेम फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेबल लेआउट, ठीक है। तो पता चले कि कैसे आप प्लेस कर सकते हो सारी चीजें, ओके। सो दैट इज द होमवर्क प्रैक्टिकल, एंड इट्स नॉट इन योर प्रैक्टिकल लिस्ट, बट आप एक बार ट्राई करोगे तो यू विल बी मच मोर फैमिलियर टू टेबल लेआउट, ओके, ठीक है। एंड CSC 1 वालों को पता नहीं होगा वो पर्टिकुलर फॉर्म दिया था उसके बारे में, सो विल डिस्कस दैट इन टुडेज लैब, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं चैट बॉक्स में अप्लाई कर देती हूँ। Okay, I'm stopping the recording right now because the session is almost over. So just a minute, let me just search for that. किसी के पास हो तो share कर दो, otherwise I'm searching. Okay, I got it. Let me share that in chat box. Okay, this one. I have shared that in chat box. आपको सेम फॉर्म अभी क्रिएट करना है टेबल लेआउट से, ठीक है। फॉर CSC 1 students who don't know about this form,
लेट मी इन्फॉर्म यू। एक एप्लीकेशन फॉर्म करके टेक्स्ट व्यू लो, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर आल्सो टेक्स्ट व्यूज, दिस टू आर एडिट टेक्स्ट, ब्रांच भी टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे बाजू में एक स्पिनर लिया हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट नहीं किया, आप कर देना तो आपको कुछ विजिबल रहे, ठीक है, पता चले कि ये स्पिनर है। देन जेंडर इज आल्सो अ टेक्स्ट व्यू, मेल फीमेल एंड अदर आर रेडियो ग्रुप, राइट, रेडियो बटन्स, एंड एक्सपर्ट इज आल्सो अ टेक्स्ट व्यू। उसके बाद चेक बॉक्सेस लिए हैं 4 for 4 subjects, right? And after that there are 2 buttons, reset and next. तो whenever user will click on reset button, क्या होना चाहिए कि ये जितने भी UI कंट्रोल में आपने ऐड किया है, ठीक है, कुछ डेटा, so that will be remove, मतलब that should be removed, as in यूजर नेम कोई ऐड किया है तो वो रिमूव हो जाना चाहिए, पासवर्ड ऐड किया है रिमूव हो जाना चाहिए, ब्रांच कोई स्पेसिफिक सिलेक्ट की हो, ठीक है, स्पिनर से, तो वो बाय डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू है वहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। देन चेक रेडियो बटन कोई ऑप्ट किया है तो वो अनचेक हो जाना चाहिए। द सेम वे अगर कोई चेक बॉक्सेस चेक करके रखे हैं वो अनचेक हो जाना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है, रिसेट बटन पर क्लिक करें तब। एंड व्हेन द यूजर विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, इट शुड बी रिडायरेक्टेड टू अनदर एक्टिविटी, okay? So this was the form. Create this one using table layout, okay? Okay, our attendance is being recorded, so if you wish to leave the meeting, you can. Thank you, ma'am. Welcome.